پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریافت پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خاموش کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریافت انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے حویلی میں ایک اور ڈھانچہ بھی دیکھا تھا، کرسی پر بندھا ہوا، زریاب نے کہا۔ ہاں، حویلی کے لفٹ ونگ میں وہ ڈھانچہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ بھی حویلی کا ایک وفادار ملازم تھا جسے کرسی پر باندھ کر ڈال دیا گیا اور وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا، کندن نے جواب دیا۔ ریلوے کے ملازم کمال اور شگن کو کیوں قتل کیا گیا ہے؟ زریاب نے پوچھا۔ صرف ان دونوں کو ہی نہیں، اس رات اسٹیشن ماسٹر کو بھی قتل کر دیا گیا، کندن نے کہا۔ کیوں؟ زریاب کو سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تمہاری آمد کو راز رکھنے کے لیے، کندن نے جواب دیا، تاکہ کوئی یہ نہ بتا سکے کہ تم حویلی میں آنے کے لیے اس اسٹیشن پر ٹرین سے اتری تھی۔ مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ زریاب نے کہا۔ میں زبردستی تو یہاں نہیں آئی، جاگیردار نمران کی دعوت پر آئی ہوں۔ وہ لوگ مجھے اس سے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اور کندن نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ میرا تعلق سندس خاندان سے ہے، زریاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ میں اپنے خاندان کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہوں تاکہ اس خاندان کی تاریخ میں جو ابہام پیدا ہوا ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے، حقائق کی روشنی میں اسے دور کیا جا سکے اور اس خاندان کی اصل تاریخ سامنے لائی جائے۔ میں نے لوگوں سے تعاون کے لیے اخبارات میں اشتہار دیا تھا۔ مجھے جاگیردار نمران کی طرف سے بھی خط ملا کہ اس کے پاس اس خاندان کے بارے میں کچھ تاریخی دستاویزات موجود ہیں، لیکن وہ بوڑھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے خود میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اس نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، لیکن یہاں آتے ہی اس طاغوتی چکر میں پھنس گئی۔ یہ لوگ مجھے نمران سے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ شگن کا اس حویلی سے کیا تعلق تھا؟ وہ مجھے یہاں آنے سے کیوں روکنا چاہتا تھا؟ شگن اس حویلی کا وفادار تھا، کندن نے جواب دیا۔ اس کے باپ دادا اس حویلی کے خدمتگار تھے۔ 11-12 سال کی عمر میں جب شگن کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بھی یہاں سے بھاگ گیا۔ طویل عرصہ غائب رہنے کے بعد اس نے واپس آنا چاہا تو حویلی کے حالات بدل چکے تھے۔ اس نے درویش پور میں ریلوے میں ملازمت کر لی اور اپنا تبادلہ اس اسٹیشن پر کروا لیا۔ اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ اس جیسے چھوٹے اسٹیشن پر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور اس نے تو خود یہاں تبادلے کی درخواست دی تھی۔ شگن ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ اس اسٹیشن پر رہتے ہوئے وہ حویلی کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ دوسرا پوائنٹ مین کمال اور اسٹیشن ماسٹر بھی بہت اچھے آدمی تھے۔ ان کی وجہ سے شگن کو ادھر آنے جانے کا موقع مل جاتا۔ اسے پتہ چل گیا کہ جاگیردار کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ وہ سازشی عناصر کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم آ گئیں۔ تم نے جب اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو اس نے تمہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ تمہارا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، لیکن اس نے تو جاگیردار کے خلاف باتیں کی تھی۔ اسے دنیا کا ظالم ترین اور عیاش آدمی قرار دیا تھا، زریاب نے کہا۔ وہ باتیں اسی لیے کی گئی تھیں کہ تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اور تم واپس چلی جاؤ، کندن نے جواب دیا۔ یہ لوگ مجھے نمران سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ زریاب نے پوچھا۔ نمران؟ کندن کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ جاگیردار نمران اس حویلی میں ہوتے ہوئے بھی لاپتہ ہے۔ لاپتہ؟ کیا مطلب؟ زریاب نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ حویلی اپنے اندر بہت ہی پر اسرار دنیا چھپائے ہوئے ہے، کندن نے کہا۔ جب یہ حویلی آباد تھی تو یہاں سینکڑوں افراد گھومتے پھرتے نظر آتے تھے، لیکن اس حویلی کے اندرونی راز اس وقت بھی بہت کم لوگوں کو معلوم تھے، اور آج بھی بہت سے راز
दूसरों की निगाहों से पोशीदा हैं। मैं इस हवेली के बहुत से खुफिया रास्तों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये रात अभी तक नहीं जान सकी कि जागीरदार निमरान को हवेली के किस हिस्से में रखा गया है। मैं इस हवेली के एक गोशा छान चुकी हूँ, लेकिन अभी तक पता नहीं चला सकी। उस हवेली के एक हिस्से को लिफ्ट विंग कहा जाता है, ज़रियाब ने कहा। गोपांग ने मुझे इसकी तरफ जाने को मना किया था, लेकिन एक बार मैंने उस लिफ्ट विंग की राहदारी में किसी का सफ़ेद आंचल लहराते हुए देखा तो हिम्मत करके वहां चली गई। मेरा ख्याल था कि वो नर्स होगी जिसे निमरान की देखभाल के लिए रखा गया है, और मैं सिर्फ उसका आंचल देख सकी थी। मैं उस बला की राहदारी में उसे तलाश करती रही, वो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन एक कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ वो ढांचा नजर आ गया। मैं जानती हूँ, कुंदन ने जवाब दिया। मैं उस ब्लॉक का चप्पा चप्पा छान चुकी हूँ। मुझे यकीन है कि उस इमारत के नीचे कोई तय खाना है जिसका रास्ता मैं अभी तक तलाश नहीं कर सकी। क्या हवेली का वो हिस्सा असीब ज़दा है? ज़रियाब ने पूछा। उस हवेली का सबसे बड़ा असीब तो खामस है, कंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने वहाँ कुछ अजीब और पुरइसरार किस्म की नकलो हरकत महसूस की है। मुझे मालूम है, कुंदन मुस्कुराई। तुम जिसे असीब या कोई बदरू समझती रही हो, वो मैं थी। मैं भेस बदल बदल कर हवेली के उस हिस्से में घूमती रही हूँ। भेस बदलने का मकसद ये है कि खामस खौफज़दा होकर उस तरफ ना आ सके, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो खुद इस हवेली का सबसे बड़ा असीब है। वो किसी बात से खौफज़दा नहीं है, वो मेरी ताक में रहता है, लेकिन मैं भी गाफिल नहीं हूँ। कल रात भी मैं ही थी। कुंदन ने उसकी बात काट दी। खामस उस वक़्त हवेली से बाहर गया हुआ था। मैंने मौका से फ़ायदा उठाते हुए तलाश शुरू कर दी। मैं उस वक़्त स्याह लिबास पहने हुए थी। मैं बहुत देर तक वहाँ लैंप उठाए फिरती रही, लेकिन मुझे तय खाने का रास्ता नहीं मिला। फिर रात को मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की तो ऐन वक़्त पर खामस पहुँच गया। मुझे राह फरार इख्तियार करना पड़ी। उस वक़्त मैं उसके हाथ आते आते बची थी। ज़रियाब के मुंह से गहरा सांस निकल गया। गुज़श्ता शाम उसने लिफ्ट विंग की राहदारी में लैंप को हवा में तैरते हुए देखा था। वो उसे कोई असीब या रूही समझती थी, लेकिन अब ये मामला भी हल हो गया था। कुंदन स्याह लिबादा पहने हुए थी और लिबादा नहीं देख सकी थी। अगर खामस उस वक़्त कहीं गया हुआ है तो हमें मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए, ज़रियाब ने कहा। हो सकता है कि हम उस वक़्त तय खाने का रास्ता तलाश कर लें। ठीक है, चलो। कुंदन फौरन उठ गई। ज़रियाब ने उठकर बारादरी से बाहर की तरफ देखा। ताहद्दे निगाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा नजर आ रहा था। वो कुंदन के साथ नीचे आ गई और फिर वो दोनों तवील पुरपीच राहदारी और खुली जगहों पर घूमती हुई हवेली के लिफ्ट विंग में आ गईं। उस वक़्त दोपहर हो चुकी थी। बाहर तेज़ धूप होने के बावजूद लिफ्ट विंग की राहदारियों में अंधेरा था। कुंदन मुख्तलिफ कमरों और राहदारियों को ठोक बजाकर देख रही थी। चलो उस तरफ चलते हैं, कुंदन ने कहा, और वो दोनों कदीम तारीख राहदारी में चलने लगी। ज़रियाब उस वक़्त कुंदन से चंद कदम आगे थी। दफ़तन वो किसी तरह से कदमों की आहट सुनकर चौंक गई। उसने मुड़कर कुंदन की तरफ देखा। वो एक जगह रुक गई थी। ज़रियाब दाएं तरफ की राहदारी में मुड़ गई और अभी उसने दूसरा कदम उठाया ही था कि मुखालफ सिमत से खामस और गोपांग अचानक ही उसके सामने आ गए। ज़रियाब के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। वो मुड़कर दूसरी राहदारी की तरफ दौड़ी और 2 कदम के बाद ही वो ठठक कर रुक गई। तवील राहदारी खाली पड़ी थी और कुंदन का कहीं नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था। वो फटी फटी सी निगाहों से सनसान और नीम तारीख राहदारी को देख रही थी। तुम्हें इस तरफ आने से मना किया गया था। गोपांग उसके सामने तन कर खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर नागवारी के तासरात थे। वो मुझे ज़बरदस्ती ले आई थी, ज़रियाब ने हकलाते हुए कहा। वो कौन? और गोपांग की आंखों में उलझन सी तैर गई। वो अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, ज़रियाब ने राहदारी की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। गोपांग चंद लम्हे उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने खामस को इशारा किया। खामस तेजी से आगे बढ़ गया और राहदारी के आखिरी सिरे पर वो एक लम्हे को रुका और फिर दाएं तरफ मुड़कर निगाहों से उजल हो गया। मुझे खामस ने बताया था कि तुम पहले भी इस तरफ आ चुकी हो। मुझे तमाम ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। गोपांग उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। आखिर तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नक्शा है जिसमें हवेली के हिस्से में किसी खजाने की निशानदही की गई हो?
मेरे पास किसी खजाने का नक्शा नहीं है और ना ही मैं ऐसी लघु बातों पर यकीन रखती हूँ, ज़रियाब ने जवाब दिया। तो फिर तुम इतना तवील सफ़र करके यहाँ क्यों आई हो? गोपांग ने उसे घूरा। अपनी आमद का मकसद मैंने निमरान के नाम उस खत में लिख दिया था जो तुम्हारे कब्जे में है। मैं जागीरदार निमरान से मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे उससे क्यों नहीं मिलने देते? आखिर कहाँ छुपा रखा है उसे तुम लोगों ने? ज़रियाब बोली। तुम्हें बता दिया गया था कि डॉक्टर की इजाज़त के बगैर तुम्हें जागीरदार से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, गोपांग ने कहा। कल दिन में किसी वक्त डॉक्टर यहाँ पहुँच जाएगा। वो अगर मुनासिब समझेगा तो तुम्हें निमरान से मिलने की इजाज़त दे देगा। बसूरत देगर तुम्हें नामराद वापस जाना पड़ेगा। क्या मैं इस हवेली से वापस जा सकूंगी? ज़रियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। मैं समझा नहीं, क्या तुम्हें यहाँ कोई खतरा महसूस हो रहा है? गोपांग ने कहा। शगन, कमाल और स्टेशन मास्टर को क्यों कत्ल किया गया है? ज़रियाब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। गोपांग चौंक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो चंद लम्हे ज़रियाब की तरफ देखता रहा और फिर सर्द लहजे में बोला, तुम्हारे ज़हन पर खौफ तारी है और मैंने उस रोज़ भी कहा था कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मगर तुम किसी और के चक्कर में पड़ गईं। डर और खौफ ने तुम्हारे जहन को पूरा गंदा कर दिया है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई, सब तुम्हारा वहम है। वहम? ज़रियाब के लहजे में तंज था। उस रात मैंने जंगल में अपनी आंखों से कमाल को जहर में बुझे हुए खंजर का शिकार होते देखा था। उसी रात पहाड़गंज के स्टेशन मास्टर को भी कत्ल कर दिया गया था और आज शगन की मतफन और फूली हुई लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। क्या मैं उसे अपना वहम कह सकती हूँ? ओहो! और गोपांग के मुंह से बेख्तियार निकला। तुम्हें किसने बताया कि उस रात स्टेशन मास्टर भी कत्ल हो गया था? मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे बाद यहाँ कोई नहीं आया। क्या तुम गैब का इल्म जानती हो? मैं गैब का इल्म नहीं जानती, ज़रियाब ने जवाब दिया, लेकिन जहाँ किसी के 4 दुश्मन हों वहाँ उसका एक हमदर्द भी पैदा हो जाता है। उस हवेली में मेरे बाद खामस के अलावा किसी और का वजूद नहीं है और ज़ाहिर है कि खामस तुम्हारा हमदर्द नहीं हो सकता। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? गोपांग की आंखों में उलझन बढ़ती जा रही थी। मैंने इसी लिफ्ट विंग में कुर्सी पर बंधा हुआ एक इंसानी ढांचा भी देखा था, ज़रियाब ने जवाब दिया। वो भी हवेली का वफादार मुलाजिम था जिसे कत्ल कर दिया गया। शगन भी हवेली का वफादार था और उसके बाप दादा उसी हवेली में खिदमात अंजाम देते रहे थे। रेलवे स्टेशन के मुलाजिम कमाल और स्टेशन मास्टर को भी महज इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो यहाँ मेरी आमद की गवाही न दे सके। मुझे यकीन है कि तुम लोग यहाँ किसी गहरी साजिश में मसरूफ़ हो, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे अज़ाइम कामयाब नहीं हो सकते। शहर में मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ आई थी और मेरी गुमशुदगी क़यामत मचा देगी। हैरत अंगेज़, गोपांग की आंखें एक बार फिर सिकुड़ गईं और इस वीरान हवेली में किसी से राब्ता होने के बावजूद तुम्हारी मालूमात हैरत अंगेज़ हैं। अभी तुमने एक हमदर्द का जिक्र किया था, कौन है वो? ताकि हमें भी ये मालूम हो सके कि अगर यहाँ कोई मौजूद है तो वो कौन है और हम अब उसकी मौजूदगी से अब तक लाइल्म क्यों हैं। वो एक रूह है, ज़रियाब ने जवाब दिया। रूह? और गोपांग ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। ये दुरुस्त है कि इस किस्म की पुरानी इमारतों के बारे में असीब और बदरूहों की पुरअसरार कहानियाँ मशहूर हो जाती हैं, लेकिन मैं इन खराफात पर यकीन नहीं रखता। तो क्या आज खामस की अदम मौजूदगी में यहाँ कोई आया था? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ओहो! और अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि वो तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ ले आई थी। कौन है वो? वही रूह जिसका मैंने जिक्र किया था, ज़रियाब ने जवाब दिया। रूहों पर ना मैं यकीन रखता हूँ और ना खामस, गोपांग ने जवाब दिया। खामस उसे तलाश करने गया है और अभी पता चल जाएगा कि क्या किस्सा है। ज़रियाब खामोश रही। तकरीबन 20 मिनट के बाद खामस वापस आ गया और उसने गोपांग की तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। ठीक है खामस, और गोपांग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया और उस लड़की ने भी कुछ नहीं खाया होगा। तुम खाना तैयार करो और मैं इसके कमरे में हूँ। वह ज़रियाब की तरफ मुड़ गया। चलो, तुमसे कुछ और बातें करने को जी चाहता है। उसने ज़रियाब का हाथ पकड़ लिया। ज़रियाब ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और तन कर उसके सामने चलने लगी। वो लिफ्ट विंग से निकल कर उसी ब्लॉक में आ गए जहां ज़रियाब का रिहायशी कमरा था, लेकिन बरामदे में पहुंचकर गोपांग दूसरी तरफ मुड़ गया। आओ, हम दूसरे कमरे में बैठेंगे।
وہ ڈائننگ ہال والے بلاک میں آ گئے، لیکن ڈائننگ ہال کی طرف جانے کی بجائے ایک اور کمرے میں مڑ گئے۔ دروازہ بند تھا جو گوپانگ نے کھولا۔ اندر داخل ہوتی دریاب چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ کمرہ بھی خاصا وسیع و عریض تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے کا آدھا حصہ ڈرائنگ روم کے طور پر آراستہ تھا اور آدھا بیڈ روم کے طور پر۔ ڈرائنگ روم کا فرنیچر بے حد قیمتی اور جدید دور سے تعلق رکھتا تھا۔ دوسری طرف بچھا ہوا بیڈ بھی بے حد شاندار تھا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کی ایک خوبصورت الماری بھی استادہ تھی۔ ڈرائنگ روم والی سائڈ پر آتش دان کے کارنس کے اوپر چند خوبصورت ڈیکوریشن پیس آراستہ تھے، جن میں سیاہ پتھر سے تراشا ہوا ایک گھوڑا بھی شامل تھا۔ بے حد خوبصورت گھوڑا پچھلے پیروں پر کھڑا تھا اور گھوڑے کا یہ مجسمہ تقریباً 1 فٹ اونچا تھا۔ دریاب کارنس کی ان آرائشی چیزوں پر نظر دوڑاتی ہوئی اوپر دیوار پر آویزاں ایک تصویر کی طرف دیکھنے لگی، اور وہ بھی کسی آدمی کا ہاتھ کا بنا ہوا پورٹریٹ تھا۔ وہ قدرے آگے بڑھ کر اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے سے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ چہرہ اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ اس نے گوپانگ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا واقعی تم اسے نہیں جانتی؟ گوپانگ نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی، حالانکہ میرا خیال تھا کہ تم اسے دیکھتے ہی اچھل پڑو گی۔ نہیں، میں نہیں جانتی، زریاب نے جواب دیا۔ یہ وہ شخص ہے جس سے ملنے کے لیے تم یہاں آئی ہو، گوپانگ نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ جاگیردار نمران؟ زریاب اچھل پڑی۔ گوپانگ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے اسوات میں سر ہلا دیا۔ زریاب ایک بار پھر تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ بڑا حسین اور شاندار چہرہ تھا، وہی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں اور ٹھوڑی کے عین بیچ میں چھوٹا سا تل۔ دفتن زریاب کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اچانک ہی یہ احساس ہوا تھا کہ اس تصویر اور اس کے باپ کے چہرے میں بے حد مشابہت تھی۔ وہ یہ سوچ کر ہی عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگی تھی کہ کیا اس کے باپ کا بھی اس حویلی سے کوئی تعلق ہے۔ پہلی رات اس نے کمرے کی دیوار پر جو پورٹریٹ دیکھا تھا اس میں بھی اس کے باپ کی مشابہت دکھائی دی تھی۔ کیا اس کے باپ کا تعلق اس جاگیردار فیملی سے تھا؟ لیکن اس کے باپ نے کبھی کسی جاگیر کا تذکرہ تو نہیں کیا تھا۔ مس زریاب، گوپانگ کی آواز سن کر وہ اپنے خیالات سے چونک گئی۔ اس نے مڑ کر گوپانگ کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ایک بار پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ تم جاگیردار نمران سے کیوں ملنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں اس خاندان کی تاریخ پر ریسرچ کر رہی ہوں۔ نمران سے اسی سلسلے میں خط و کتابت ہوئی تھی۔ وہ مجھے اس خاندان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا، زریاب نے جواب دیا۔ تمہارا اس خاندان سے کیا تعلق ہے؟ گوپانگ نے پوچھا۔ میں بھی اسی خاندان کے ایک فرد ہوں، زریاب نے کہا۔ گرافین کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش کمرے میں آ گیا اور اس نے بتایا کہ کھانا تیار ہو چکا ہے۔ چلو پہلے کھانا کھا لیں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، گوپانگ نے کہا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی۔ کھانے کے بعد گوپانگ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ آج رات میں حویلی میں رہوں گا۔ رات کے کھانے پر باتیں ہوں گی۔ زریاب اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ واقعی بہت تھک چکی تھی اور کچھ آرام کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے تکیے کو اٹھا کر جیسے ہی درست کرنا چاہا اچھل پڑی۔ تکیے کے نیچے اس کی ڈائری پڑی تھی، حالانکہ صبح یہ ڈائری یہاں نہیں تھی اور اس نے تکیے کو بھی جھاڑ کر دیکھا تھا۔ اس نے ڈائری کھولی لیکن اس کے صفحات بالکل خالی تھے۔ کہیں ایک لفظ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی صفحہ پھٹا ہوا بھی نہیں تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، ڈائری اسی کی تھی، لیکن اس کی تحریر کہاں گئی اور تکیے کے نیچے یہ ڈائری آئی کہاں سے؟ اس کے دماغ میں ایک بار پھر سنسناہٹ ہونے لگی۔ صفحات پر سے تحریر کا غائب ہو جانا واقعی پر اسرار بات تھی۔ وہ تو اس بات پر بھی حیران تھی کہ لفٹ ونگ میں قدموں کی آواز سن کر کندن راہداری میں اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کیا وہ واقعی کوئی روح تھی؟ رات کے کھانے کے بعد گوپانگ دیر تک اسے باتیں کرتا رہا اور پھر اسے اسی بلاک میں واقع ایک اور کمرے میں بھیج دیا گیا جہاں اس کا سوٹ کیس بھی موجود تھا۔ گوپانگ اس کمرے میں چلا گیا جو جدید طرز پر آراستہ تھا۔ زریاب والا کمرہ اس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ زریاب نے دروازہ بند کر لیا۔ کارنس پر لیمپ روشن تھا۔ وہ مسہری پر لیٹ گئی اور اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر ان پر اسرار واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔
अचानक उसकी आंख खुल गई। वो नहीं समझ सकी थी कि गहरी नींद से कैसे जाग गई। वो इधर उधर देखने लगी। कमरे में लैंप की मध्यम जर्द रोशनी बड़ी पुरअसरार लग रही थी। उसकी नजरें सामने वाली दीवार पर जम गईं। उसे यूं लगा जैसे ख्वाब देख रही हो। उसने उंगली को दांतों से काटा। वो ख्वाब नहीं देख रही थी। सामने वाली दीवार शक होकर आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और फिर दूसरे लम्हे एक दराज कामत आदमी को शक दीवार से बाहर कदम रखते देखकर दरियाब की आंखें दहशत से फैल गईं। उसने चीख रोकने के लिए पूरा हाथ मुंह में ठोंस लिया। दीवार से बरामद होने वाला वो दराज कामत आदमी छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसकी मुसहरी की तरफ बढ़ रहा था। दराज कामत आदमी निपे तुले कदम उठाता हुआ मुसहरी से 2 कदम के फासले पर रुक गया। जरिया फटी फटी सी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। उसका एक हाथ अभी तक मुंह पर रखा हुआ था और वो उस शख्स की तरफ देख रही थी जो दीवार से निकलकर उसके सामने आकर रुक गया था। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ महसूस हो रहा था। धारीदार बुश्त और सफ़ेद पजामा, बड़ा हुआ शेफ, अंदर को धनसी हुई आंखें, पिचके हुए रुखसार और उलझे हुए बालों में स्याही कम और सफ़ेदी ज़्यादा थी। उसके दोनों हाथ पहलुओं में लटके हुए थे। लैम्प की जर्द रोशनी में वो बेहद पुरअसरार और बरसों का बीमार नजर आ रहा था। वो खामोश और बेहस हरकत खड़ा जरियाब की तरफ देख रहा था। कका कौन हो तुम? और जरियाब के मुंह से खौफ दासी आवाज़ निकली। डरो नहीं, उस शख्स के मुंह से सरसराती हुई सी आवाज़ निकली। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो तुम जरियाब हो। हाँ, मैं जरियाब हूँ, मगर तुम कौन हो? जरियाब बोली और उसके लहजे में खौफ अब भी नुमाया था। मैं, यूँ लगा जैसे उस शख्स ने गहरा सांस लिया हो। इस हवेली का कैदी जागीरदार निमरान, जिसने तुम्हें यहाँ आने की दावत दी थी। जरियाब को ज़हन को एक ज़ोरदार झटका लगा। वो अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। गोपांग ने आरास्ता कमरे में आवीज़ा तस्वीर के बारे में बताया था कि वह निमरान है, लेकिन वो तस्वीर एक खूबरूप शख्स की थी और ये शख्स जो उसके सामने खड़ा था किसी तरह भी उसकी तस्वीर से मुकाबलत नहीं रखता था और वो कोई इंसान नहीं बदरू लग रहा था। उस हवेली में उसके साथ कुछ अजीबोगरीब और नाकाबिले फहम वाक़यात पेश आ रहे थे। गुज़श्ता 2 दिनों में 3 आदमी कत्ल हो चुके थे। वो तीनों रेलवे के मुलाजिम थे। उन्हें महज इसलिए कत्ल किया गया था कि उसकी यहाँ आमद के बारे में कोई गवाही ना दे सकें, लेकिन उन तीनों में कम से कम एक शख्स ऐसा था जो इस हवेली के बारे में कुछ जानता था। उसे शायद उसी लिए भी मौत के घाट उतार दिया गया था कि वो जरियाब के सामने हवेली के राज ना उगल दे। और फिर वो कुंदन, उसकी शख्सियत भी अभी उसके लिए बड़ी पुरअसरार साबित हुई थी। वो हवेली के बहुत से राज जानती थी, खुफिया रास्तों से वाकिफ थी। वो अपने आप को जिंदा कहती थी, मगर लिफ्ट विंग के राहदारी से अचानक ही गायब हो गई। और फिर उसकी गुमशुदा डायरी वाला वाकया। डायरी की तलाश में उसने कमरे का कोना कोना छान मारा था, बिस्तर की चादर तक उठाकर झाड़ डाली थी, मगर कमरे में डायरी का सुराग नहीं मिला था। और दूसरे दिन डायरी उसके तकिए के नीचे रखी हुई मिली थी। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि वो एक रात पहले उसने डायरी के 3-4 सफ़हात पर जो तहरीर लिखी थी वो गायब थी। तहरीर पेन से लिखी गई थी, जिसका मिटाया जाना भी मुमकिन नहीं था। अगर किसी तरह मिटाया भी गया होता तो कोई ना कोई निशान ज़रूर रह जाता, मगर सफ़हात बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल कोरे। डायरी के हर सफ़े पर दिन, तारीख और महीना लिखा हुआ था और उसने एक एक सफ़ा चेक किया था, कोई सफ़ा भी गायब नहीं था। ये इसरार भी अभी तक उसकी समझ में नहीं आ सका था कि डायरी के सफ़हात से उसकी तहरीर कैसे गायब हो गई। गोपांग और खामस को जरियाब पर एतमाद नहीं था, इसलिए उसे पहले कमरे से निकालकर उस कमरे में मुंतकिल कर दिया गया था जिसके रोशनदान और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। जरियाब ने अगरचा चेक नहीं किया था, लेकिन उसे यकीन था कि कमरे के दरवाजे को बाहर से भी कुंडा या ताला लगा दिया गया होगा और ये पुरअसरार शख्स दीवार से बरामद हुआ था और अपने आप को जागीरदार निमरान कह रहा था। जरिया बड़ी गहरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे याद आ गया कि निमरान ने उसे खत में लिखा था कि वह बूढ़ा और बीमार है,
इसलिए खुद नहीं आ सकता। गोपांग ने भी यही बताया था कि जागीरदार बीमार है और डॉक्टर की इजाज़त के बगैर उससे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके सामने खड़ा हुआ ये शख्स भी बूढ़ा था और बीमार नजर आ रहा था, लेकिन दूसरे कमरे में अवीज़ा तस्वीर से मुशाबत नहीं थी। उसके ज़हन में अचानक यह ख्याल उभरा कि वह तस्वीर जवानी की थी और यह शख्स बूढ़ा था। उसने कई रोज से शेव भी नहीं की थी। बीमारी उसकी बदली हुई हैबत ने तस्वीर से उसकी मुशाबत भी ख़त्म कर दी थी। आप निमरान हैं और दरियाब की नज़रें बदस्तूर उसके चेहरे पर मरकूज थी। हाँ, और मैंने ही तुम्हें यहाँ आने के लिए खत लिखा था, लेकिन मुझे अफसोस है मेरी वजह से तुम्हें कुछ तकालीफ का सामना करना पड़ा। निमरान ने कहते हुए इधर उधर देखा और फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं, थक गया हूँ खड़े खड़े। जरूर तो आप तशरीफ रखिए, जरियाब ने कहा और खुद भी मसैरी से उतरकर खड़ी हो गई और कुर्सी उठाकर उसके करीब रख दी। शुक्रिया। निमरान कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथ हथेलियों पर रख दिए और बैठो बैठो तुम भी। जरियाब पैर लटकाकर मसहरी पर बैठ गई। मुझे उसी रोज पता चल गया था जब तुम यहाँ आई थी, निमरान ने कहा, लेकिन उन लोगों ने मुझे अपना कैदी बना रखा है, किसी से मिलने नहीं देते। निमरान ने कमजोर सी आवाज में कहा, आपने मुझे वो खत कैसे लिखा था? जरियाब ने पूछा। अब उसके जहन पर तारी खौफ ज़ैल हो चुका था। डॉक्टर, निमरान ने जवाब दिया, डॉक्टर शमीर महीने में 2 मरतबा मुझे देखने के लिए यहाँ आता है। वो हमेशा अपने साथ कुछ अखबारात भी लेकर आता है जो मैं महज वक्त गुजारी के लिए पढ़ता हूँ। कई रोज पहले जब वो मुझे चेक करने के बाद चला गया तो मैं अखबारात देखने लगा और उनमें कम से कम 3 अखबारात ऐसे थे जिनमें तुम्हारी तरफ से इश्तहार छपा था। इश्तहार पढ़कर मुझे हैरत भी हुई थी और खुशी भी हुई कि कोई ऐसा है जो इस कदीम तरीन खानदान की बिखरी हुई तारीख को समेट कर उसे महफूज करना चाहता है। मैंने तुमसे राब्ता करने का फैसला कर लिया और खत लिख कर रख लिया। अगली मरतबा जब डॉक्टर शमीर मुझे चेक करने के लिए आया तो उसे एक बड़ी रकम का लालच देकर वो खत उसके हवाले कर दिया कि तुम्हारे नाम पोस्ट कर दे। निमरान रुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा और जैसे वह बोलते बोलते थक गया हो। जरियाब गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद निमरान फिर बोलने लगा। डॉक्टर शमीर ने वो खत पोस्ट कर दिया, लेकिन जो अंदाजे कायम किए थे वो गलत निकले। पहले हवेली की डाक यहाँ आया करती थी। मेरा ख्याल था कि अगर तुम्हारा खत आया तो गोपांग उसे मुझ तक पहुँचा देगा, लेकिन तुम्हारा खत दरवेशपुर में गोपांग के दफ्तर पहुँच गया। पोस्ट ऑफिस वाले सब ही जानते हैं कि मेरे मैनेजर का दफ्तर और दरवेशपुर में है। यह मुमकिन है कि गोपांग को डॉक्टर शमीर ने उस खत के बारे में बता दिया हो और पोस्ट ऑफिस को हदायत कर दी गई हो कि हवेली के पते पर आने वाली डाक उनके दफ्तर पहुंचा दी जाए। और वैसे भी मुझे यकीन है कि अगर वो खत हवेली तक आ भी जाता तो मुझ तक ना पहुंचता। वो एक बार फिर खामोश हो गया और उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ गई हूँ? जरियाब ने पूछा। जिस रात तुम यहाँ पहुंची थी उससे अगली सुबह गोपांग ने बताया था। वो मुझसे पूछ रहा था कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। निमरान ने जवाब दिया, और मैंने उन्हें पुराने अखबारात में तुम्हारे इश्तहार दिखाए थे, मगर उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया। वो समझ रहे हैं कि मामला कुछ और है। और क्या मामला हो सकता है? जरियाब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। जागीर का मामला है, निमरान ने जवाब दिया। लंबा किस्सा है, फिर बताऊंगा। तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कौन हो और किसकी औलाद हो, और उस खानदान की तारीख लिखने का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? मेरा बाप एक नामूर ताजर था, एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया, जरियाब ने बताया। और उसका नाम वो कहाँ से आया था? निमरान ने पूछा। मेरे वालिद का नाम शजराए सुंदस था और मैं उसी शहर में पैदा हुई थी, लेकिन सुना है कि मेरे दादा पड़ंग आबाद से आकर इस शहर में आबाद हुए थे। उस वक़्त मेरे वालिद बहुत कम उम्र थे और वैसी शहर में पले बड़े और आला तालीम हासिल की। अपने वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने कारोबार संभाल लिया। दयानतदारी और मेहनती आदमी थे, कारोबार तरक्की करता गया। एक रोज़ घर पर हमें इत्तला मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वो जाम बहक हो चुके थे। पड़ंग आबाद, निमरान बड़बड़ाया। और तुम्हारे दादा का क्या नाम था? रोशन ज़मीर। जरियाब ने जवाब दिया, सुना है कि वो किसी बात पर अपने वालिद से नाराज होकर वहां से निकले थे और फिर वापस नहीं गए। तुमने कभी जीदार बख्त का नाम सुना है?
नमरान ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। नहीं, ये कौन है? जरियाब ने पूछा। मेरे दादा का नाम था। पड़ंग आबाद से उनका भी कुछ तलक रहा है, नमरान ने जवाब दिया। फिर बोला, तुम्हारे वालिद शजरा ने तुम्हें अपने बुजुर्गों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था? इत्तेफाक से कभी जिक्र होता तो किसी के बारे में कुछ बता देते, लेकिन उनकी बातों से मैंने अक्सर ये अंदाज़ा लगाया था कि वो अपने बुजुर्गों से कुछ नाराज़ हैं, शायद इसलिए बहुत कम जिक्र किया करते थे, जरियाब ने जवाब दिया। तुम्हारा कोई भाई या बहन? निमरान ने पूछा। मैं अपने माँ बाप के इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिद भी अपनी माँ के बाप के इकलौते ही थे, इसलिए कोई कज़न वगैरह भी नहीं है, जरियाब ने कहा। इस खानदान की तारीख लिखने का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? निमरान ने पूछा। तारीख का मताला मेरी हॉबी है, जरियाब ने कहा, और एक मरतबा एक किताब पढ़ी जिसके मुसन्नफ ने सुंदस खानदान की तारीख को मुख्तलिफ हवालों से कुछ गुड़मुड़ कर दिया था, और उसी वक्त मेरे जहन में यह ख्याल आया कि इस खानदान के बारे में हक़ाइक़ जमा करके उन्हें किताबी सूरत में मरतब करूं। अखबारों में इश्तहारात के जवाब में बहुत से लोगों ने मुझे खतूत लिखे थे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम खत आपका था, जिसमें आपने कुछ दस्ती वाज़ात का हवाला दिया था, इसलिए सबसे पहले मैंने आपसे रब्ता करने का फ़ैसला किया, लेकिन यहाँ आते ही अजीबोगरीब हालात का शिकार हो गई। उस हवेली के असरार मेरी समझ में नहीं आ सके। जिस रात मैं यहाँ आई थी उसी रात 3 आदमी कत्ल हो गए। उन तीनों का तलक रेलवे स्टेशन से था, और उनमें से शगन नाम के एक शख्स के बारे में पता चला कि उसका बाप इस हवेली का खिदमतगार था। शगन? निमरान के मुंह से बेख्तियार निकला। अजीबोगरीब हैबत वाला वो लड़का, क्या वो जिंदा है? उसे हवेली में कत्ल किया गया है और उसकी लाश अब भी किसी कमरे में पड़ी सड़ रही है, जरियाब ने कहा। मुझे उसकी मौत का बेहद अफसोस है, निमरान ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। उसके बाप और दादा ने इस हवेली की बड़ी खिदमत की है। वो चंद लम्हों का खामोश हुआ, फिर बोला, तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? किसी न किसी तरह पता चल गई, जरियाब ने जवाब दिया। मेरे साथ इस हवेली में अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। जब मैं यहाँ आई तो अपने वालिद के कागजात में से कुछ तस्वीरें भी लेकर आई थी। वो सुंदस खानदान के बाद बुजुर्गों की तस्वीरें थी। मेरा ख्याल था कि वो तस्वीरें दिखाकर आपसे उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन तस्वीरों वाला वो लिफाफा पहली ही रात मेरे सूटकेस में से चोरी हो गया और नमरान ने हैरत से उसकी तरफ सर देखा। जी हाँ, जरियाब ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने खामद से इस सिलसिले में बात पुरस की थी, लेकिन उसने इल्ज़ाम तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो तस्वीरें कैसी थी? निमरान ने पूछा। उनमें से कम एक तस्वीर ऐसी थी जिसकी एक नकल बड़े साइज में इस हवेली के कमरे में आवीज़ा है, जरियाब ने बताया। क्या? और निमरान चौंक गया। वो तस्वीर कहाँ देखी थी तुमने? लिफ्ट विंग के सामने वाले ब्लॉक के कमरे में, जरियाब ने बताया। ओहो, निमरान गहरी सांस लेते हुए बोला, वो मेरे दादा जीदार बख्त की तस्वीर है। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास उसी के साथ की तस्वीर थी? 100%, जरियाब ने कहा। लेकिन क्या मेरे वालिद का इस हवेली से कोई तलक हो सकता है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, निमरान ने उसे घूरा। उस तस्वीर में मेरे वालिद की मुशाबत है, जरियाब ने जवाब दिया, और वो आंखें और ठोड़ी पर एक छोटा सा तिल। ये तिल मैंने उसी हवेली में आवीज़ा एक और तस्वीर की ठोड़ी पर भी देखा है। मेरे वालिद ने कभी इस जागीर या हवेली का जिक्र नहीं किया। जीदार बख्त का नाम भी पहली मर्तबा आपके मुंह से सुना है, लेकिन अपने वालिद से उसकी मुशाबत मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। शायद इसमें हैरत की कोई बात नहीं, निमरान ने कहा। कोई तलक ना होते हुए भी बात चेहरों पर मुशाबत आ जाती है। उन लोगों ने आपको कैद क्यों कर रखा है? जरियाब ने पूछा। दुनिया में 3 चीज़ें फसाद की बायस बनती हैं, निमरान ने जवाब दिया। दुनिया का पहला कत्ल एक औरत के लिए हुआ था, और फिर जब दुनिया की आबादी बढ़ती गई तो इंसान के दिल में ज़र और ज़मीन की हवस भी बढ़ने लगी। आज यही तीनों चीज़ें कत्ल गारत और फसाद का बायस हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। इस जागीर का मैं वाहिद मालिक हूँ। एक बेटी थी जो मर चुकी है और उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई। उसके अलावा कोई और औलाद नहीं। जागीर का मैनेजर रखेल शाह बदनीयत आदमी साबित हुआ। वो मेरी जागीर पर कब्जा करना चाहता है, और पहले उसने मेरी बेटी से शादी करने की कोशिश की, मगर उसने जान दे दी। फिर उसने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। 2 साल से मैं इस हवेली से बाहर नहीं निकला।
गोपांग और खामस उसके गुर्गे हैं और ये दोनों बहुत से फाक इंसान हैं। पहले मैं हवेली में घूम फिर आया करता था, लेकिन एक मर्तबा मैंने चोरी छुपे हवेली से निकलने की कोशिश की तो मुझे कैद खाने में बंद कर दिया गया। कभी कभार ताज़ा हवा के लिए मुझे बाहर निकाला जाता है। मैं तवील अरसे से बीमार हूँ। एक नर्स उन्होंने मेरी देखभाल के लिए रखी हुई है। महीने में 2 मरतबा डॉक्टर भी आता है और वो भी उन्हीं के वफादार हैं। उस रोज डॉक्टर ने ना जाने क्या सोचकर तुम्हारे नाम मेरा वो खत पोस्ट कर दिया था। क्या ये लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं? जरियाब ने पूछा। हाँ, लेकिन इस वक्त तक नहीं, जब तक रखेल शाह मुझसे कागजात पर दस्तखत नहीं करवा लेता, निमरान ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। रखेल शाह जागीर को दोबारा आबाद करने के लिए हुकूमत से कर्जा हासिल करना चाहता है ताकि जंगलात साफ करके मीलों तक फैली हुई ज़मीन को दोबारा काश्त के काबिल बनाया जा सके। आजकल जदीद तरीन मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन मीलों दूर तक फैले हुए जंगलात को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए दरकार हैं, जो रखेल शाह हुकूमत से कर्जे के तौर पर हासिल करना चाहता है। उसके लिए कागजात पर मेरे दस्तखत ज़रूरी हैं और कर्जा भी मेरे ही नाम से जारी होगा। रखेल शाह मुझे इस वक्त तक जिंदा रखेगा जब तक तमाम मराहल तय नहीं हो जाते, और उसके बाद वो मुझे ज़िंदगी की एक सांस लेने की मोहलत भी नहीं देगा। और मैंने इसलिए तुमसे राब्ता करना चाहा कि शायद तुम्हारी तवस्सुत से उनकी साजिश को नाकाम बना सकूं, लेकिन तुम खुद यहाँ आकर कैद होकर रह गई हो और मुझे डर है कि ये लोग तुम्हें भी ख़त्म ना कर दें।